Have you ever seen a monkey making mischiefs, doing all sorts of nonsense things? Yes, you might have seen. In this chapter, we'll see the same. So, welcome everyone. And welcome back to this online classes of English. I'm your English teacher from Shriram Public School. My name is Vaishnavi. So today we are going to see the Moments book of class 9, the supplementary reader, and as we have seen the first chapter already, today we'll be seeing the second chapter, The Adventures of Toto, which is written by Ruskin Bond. So as you can see in the picture, the story is something about a monkey and the story is about Toto. So Toto might be a monkey. Is it so? Let's see. Before going through the story or to the story, we'll see something about the author. So author is one who is interested in writing about India, but he is of British descent. He lives with his adopted family in Mussoorie, India. So he's Indian and he was adopted by some family. He was originally of Britain. The Indian Council for Child Act has recognized his role in growth of children literatures in India, and this source is Wikipedia. So I have mentioned it clearly here. He was born on 19 May 1934, and in Kausali he was born. He was educated from Bishop Cotton School, Shimla in 1950 onwards. He got awards like Padma Bhushan, Padma Shri, and many movies and TV show he has done like Sat Khoon Maaf, The Blue Umbrella, The Black Cat, Junoon, and Ek Tha Rusty 2. And what about this story? This story is a bit humorous. As you have seen, the first story was the first story was emotional, and this second story is humorous, adventurous, and a bit naughty. Why is it naughty? Because of the monkey who is very naughty, and the name of the monkey, as we have seen, the monkey's photo is Toto. The writer's grandfather bought it from Tonga driver, Tanga chalane wala. The prank played by Toto are very mischievous, and it's narrated in a very interesting way by our author. Let's see the chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. For 5 rupees he bought. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add little fellow to his private zoo. So grandfather इनके कुछ एनिमल में इंटरेस्ट रखने वाले थे, और ग्रैंडफादर ने टोटो को, जो मंकी है, उसको किससे खरीद लिया था? टोंगा ड्राइवर से सिर्फ 5 रुपए में खरीद लिया था। और जो टोंगा ड्राइवर है वो हमेशा उस रेड मंकी को बांध कर रखा रहता था और एक फीडिंग ट्रॉप रखा हुआ था, जो कि इनके दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इन्होंने कहा कि इनका जो प्राइवेट जू है उसमें रख लेते हैं। प्राइवेट जू है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि इनके पास और भी एनिमल्स रहे होंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट टोटो। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। मंकी प्रिटी भी होते हैं। Yes, monkey was pretty. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. तो eyes जो थी बहुत bright थी, और जो उनकी deep set eyebrows थी उसके नीचे से कैसे mischief, बदमाशी झलकती थी वो बताया है। और उसके teeth which were a pearly white, एकदम pearly white थे, एकदम white teeth थे, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. जो एंग्लो इंडियन मतलब जो अंग्रेज़ और इंडियन मिक्स वाली होती हैं, मीन्स जो थोड़ा सा मॉडर्न सॉर्ट ऑफ लेडीज़ हैं, जब वो दांत अपने पर्ली वाइट दिखा के हंसता है तो वो लोग बिल्कुल डर जाती हैं। इतना डरावना लगता है ये मंकी हंसते टाइम, थोड़ा मिस्टीवियस था। बट हिज हैंड लुक्स ड्राइड अप। मंकी का हाथ कभी टच करिए, इट्स वेरी ड्राइड, रफ, एज वो पैडेड होता है बट रफ होता है, एज दो दे हैड बीन क्विक एंड विकेड, एंड हिज टेल एडिंग अप टू हिज गुड लुक्स। और जो टेल था वो क्या था? उनके गुड लुक्स को ऐड कर रहा था। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ओ हाँ, हाथ ऐसे ड्राइड अप हुए थे एज दो दे हैव बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, जैसे बहुत दिन से धूप में सूखे हुए हैं, बहुत सालों से। और उनके हाथ जो हैं बहुत क्विक और विकेड थे, और जो उनकी टेल थी वो उनकी ब्यूटी को ऐड करती थी, ऐसा ग्रैंडफादर बिलीव करते थे। क्या बिलीव करते थे? ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। मतलब अगर आप लोग भी एक टेल लगा लेते हैं तो आप लोग के भी गुड लुक्स में
एडअप हो जाएगा वो। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड टू टोटो, तो एक तरह का तीसरा हाथ था जो टोटो जहाँ पर हाथ से नहीं पहुँच सकते थे टेल से पहुँच जाते थे। ही यूज टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट रीच आउट ऑफ हिज हैंड। उन्होंने कहा ना, जैसे हाथ से जो चीज़ वो डेलिकेट चीज़ें, टेस्टी चीज़ें नहीं खा पाता था, वो कैसे ले लेता था, टेल से ले लेता था। ग्रैंड मदर always first when grandfather brought home new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from until when she was particularly in a good mood. So इनकी जो ग्रैंड मदर है वो इनके ग्रैंडफादर के एनिमल कलेक्टिंग नेचर से बहुत गुस्सा रहती थी, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो का आना ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाएगा। कब तक नहीं बताया जाएगा? जब तक उनका मूड जो है वो अच्छा नहीं हो जाता, तब तक नहीं बताया जाएगा, उसके बाद बता दिया जाएगा। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटा सा जैसे ताका जैसा होता है उसमें रख दिया था। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल में जैसे ओपनिंग करके ताका जैसे बनाया होता है, पुराने ज़माने के बिल्डिंग्स में होता था, तो वहाँ पे टोटो को बहुत अच्छे से इन्होंने टाई करके रखा था, बांध के रखा था। और वी थॉट टू पैग फेसेंट इनटू द वॉल, और जो पैग जैसे निकला रहता है, पुराने ज़माने में लोग कपड़े टांगते थे उस पर, नॉट वेरी पुराना, द रिसेंट वाला ज़माना ओनली। तो क्लोजेट में बिठाकर पैग से फैशन करके बांध कर वो लोग रखे। सो वी थॉट, इनको ये लगता था कि दे टाइड सिक्योरली लिखा और सामने लिखा और सो वी थॉट, शायद उतने सही से बंधा नहीं था, ऐसा सिर्फ हम सोच रहे थे कि वो अच्छे से बंधा है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that oh, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। ये लोग तो बांध के गए थे, बट हुआ क्या? Let's see. We found that the wall, which has been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked. जैसे वॉल पे वॉलपेपर लगाते हैं हम लोग, वैसे किसी डेकोरेशन के पेपर से उसको सजाया था, इनके ग्रैंडफादर की चॉइस थी, और अब वो जो है निकल चुका है और जो प्लास्टर था वो विजिबल था। A naked brick and plaster was visible. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. और जो वो हैंगर था उस पर जो स्कूल ब्लेजर, वो तो नीचे पड़ी हुई थी, फटी छुटी। आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से इनको चिंता थी पर ग्रैंडफादर को बिल्कुल चिंता नहीं थी। ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस, और ग्रैंडफादर को तो लगा था वाह क्या परफॉर्मेंस दी है मंकी ने। It's clever, said grandfather. Given time, I'm sure you would have tied the torn pieces of your blazer into rope and made escape through the window. और grandfather इतने हैप्पी हैं कि अगर थोड़ा सा और टाइम हमने इसे दिया होता तो जो तुम्हारी फटी हुई ब्लेजर है ना, इसकी रस्सी बनाकर ये नीचे भी उतर जाता। His presence to the house is still a secret. अभी भी लेकिन ये लोग चुपचाप बैठे हैं। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter with a number of grandfather's pet who lived very sociably together, a tortoise, pair of rabbit, tame squirrel, for a while my pet goat. इतने सारे जानवर इनके ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में अच्छे से हैप्पीली रहते थे, जहाँ पे अब किसको ट्रांसफ़र किया गया है? टोटो द मंकी को। The monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, और ये मंकी किसी को नहीं सोने देता था। So grandfather would had to leave for Dehradun next day to collect his pension in सहारनपुर, decided to take him along। और क्योंकि ये किसी को शांति से जीने नहीं देता था, तो ग्रैंडफादर का क्या था कि ठीक है हम मंकी को लेके जाते हैं अपने साथ देहरादून। अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट अकम्पनी, जो नरेटर है वो नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडफादर के साथ, बट ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। तो पहले तो नहीं। Before moving ahead with Toto's mischief, I would like to show you how the monkeys make mischiefs. As you can see, they are entering inside a house, they are eating things, and not only eating things, they are destroying things. So in this chapter हम लोग आगे यही देखने वाले हैं कि कैसे टोटो द मंकी जो है वो बार बार मिस्चीव्स क्रिएट करता है, घर की चीज़ें तोड़ता है, खाता है और सब कुछ स्पॉइल करके फिर ही जाता है। इवन खाना उठाकर प्लेट्स भी तोड़ने की आदत थी टोटो की।
एंड वट एवर इज़ द स्टोरी नाउ, जो भी स्टोरी है वो अब बार बार आपको यही दिखाएगी कि टोटोस की मिस्चीफ क्या क्या थी। पर ग्रैंडफादर ने उस ट्रिप के बारे में आकर किसको बताया? बताया किसको? इनको बताया, जो कि अब नैरेट कर रहे हैं नैरेटर। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। बड़ा सा कैनवस किट वाला बैग, ताकि वो जो कैनवस है उसको वो काट ना सके, तो वैसा बैग में उसको रखा गया और उसमें एक स्ट्रॉ था ताकि उसको कुछ खिलाया जा सके उसके लिए। ये उसका नया अबॉर्ड था। अबॉर्ड मतलब घर। When the bag was closed, there was no escape। और इस तरह से बनाया गया था कि अगर एक बार बैग पूरा पैक है तो बाहर नहीं निकला जा सकता। टोटो could not get his hands through the opening। और जो पतली सी ओपनिंग थी उससे हाथ वाथ भी बाहर नहीं निकल सकते थे। And the canvas was too strong for him to bite it away। तो उसको काटना भी बहुत मुश्किल था। किसके लिए? टोटो के। तो क्योंकि बैग काट के तो बाहर आ नहीं सकता था, लेकिन वो उसमें जंप करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जितना जंप करने की कोशिश कर रहा था उससे एक इफेक्ट हो रहा था कि बैग अपने आप कैसे जंप कर रहा है। और उस जंपिंग इन द एयर से एक एग्जीबिशन अट्रैक्ट हो गया। एक क्यूरियस क्राउड जो ऑन लुकर्स था, वो लोग बैठ कर देख रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म पे बैग अपने आप कैसे जंप कर रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक किसी तरह तो बैग में था। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जो जहाँ से चेकिंग होती है, टर्नस्टाइल जहाँ से फिर पार जाया जाता है रेलवे में, वहाँ पर वो अपना टिकट दे रहे थे। और बस फिर क्या हुआ, बैग से हेड निकल गया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और जो टिकट देख रहा था उसको वाले दांत से अपनी कनिंग वाली हंसी दिखाई। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। वो भी डर गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था कि पैसे कैसे ऐंठने हैं, पर ग्रैंडफादर को बड़ा गुस्सा आया। ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। और आपको एक डॉग का पैसा देना पड़ेगा। You in vain grandfather take Toto out of bag। In vain he tried to prove a monkey did not qualify as a dog or a quadruped। तो ये सब बेकार हो गया। उन्होंने बैग से मंकी को निकाला, उसको प्रूव किया कि वो खतरनाक नहीं है, ये वो सब। तो टोटो को लेकिन पैसा चाहिए था टिकट कलेक्टर को, तो उसने कहा नहीं, बस ये है ही, ये डॉग जो है वो क्या है, ये मंकी है, और सॉरी कुत्ता है, डॉग है, उसका पैसा पे करिए 3 रुपीज़ आप। Then grandfather just got back and took pocket as per pet tortoise। और अपने पॉकेट से पेट टॉर्टोइज निकाल के दिखाया, ये लीजिए, इसके लिए भी बता दीजिए क्या पेमेंट करना है। अब तो वो गुस्से में थे। टिकट कलेक्टर ने पास से जाकर देखा और कहा कि ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है और ये डॉग नहीं है, आप ले जा सकते हैं। तो ये हैं टोटो जी, जिनको एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा गया, जो बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। और ये कैसे यहाँ टिकट कलेक्टर के सामने बैग से निकल कर देख रहे हैं, यू कैन सी द फोटो। और ये सारी इनकी मिस्चीफ्स हैं, ये कैसे उसकी ब्लेज़र श्रेड कर दी थी, उसने फाड़ दी थी। और अभी ये वाली जो बदमाशी है साइड वाली, ये अभी ये करने वाले हैं। When Toto was finally accepted एज अ कम्फर्टेबल मेम्बर इन होम इन अ स्टेबल, तो जब टोटो को एक्सेप्ट कर दिया गया तो उसको स्टेबल पे रख दिया गया। और उसका कंपेनियन कौन बन गया? फैमिली डोंकी था, इनका नाना नाम था। जो पहली नाइट थी वो थोड़ा सा देखने गए कि टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं। कौन देखने गया? ग्रैंडफादर। पर उनको बड़ा सरप्राइजिंग फील हुआ कि टोटो कंफर्टेबल था, पर कौन अनकंफर्टेबल था? नाना अनकंफर्टेबल थे। क्यों? वो अपना जो हॉल्टर है जिससे बंधे हुए थे उसको दूर खींच रहे थे और एकदम दूर जा दूर जाने की कोशिश करते जा रहे थे। ग्रैंडफादर नाना को एक स्लैप देते हैं उनके हॉन्चेस पे और कहते वो फिर से एक जर्क लेता है और फिर ड्रैग करता है टोटो को, अपने साथ लेकर आता है। तो बेसिकली वो परेशान था किससे? टोटो से। ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ, और उससे कट कर लिया था अपने टीथ से। किसने? टोटो ने। एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग, अब ये एक इंसिडेंट था। दूसरा,
जो सर्दी के टाइम में खौलता हुआ पानी था उसके लिए बड़ा अच्छा लगता था, उसमें जाके आराम से नहाता था. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, पहले हैंड डाल के टेम्परेचर टेस्ट करता था. देन ग्रेजुअली स्टेप्स इनटू बाथ, फिर एक कदम रखकर और फिर दूसरा जाता था. फर्स्ट 1 foot एंड देन अदर एज ही सॉ मी डूइंग, जैसे कि नरेटर करते थे बिल्कुल वैसा. एज मंकी कॉपी होते भी हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं. और तब तक करता था जब तक नेक तक पानी में नहीं चला जाता था. और वंस कंफर्टेबल विथ सोप इन हिज हैंड्स एंड फीट ही वुड रब हिमसेल्फ. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो जल्दी से बाहर आ जाता था और जो किचन फायर है उसके पास बैठ जाता था ठंडा करने के लिए. तो कौन कहेगा कि एक मंकी और एक इंसान अलग होता है. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, और इन सब के बीच अगर कोई हंस दिया तो टोटो का जो है ईगो हर्ट हो जाता था. फैमिलीज फीलिंग्स वुड हैव हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, और फिर वो गुस्सा हो जाता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ. एक दिन का बात है कि टोटो खुद को उबालने वाले थे. कैसे? किचन में एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था जिसमें पानी गर्म हो रहा था. अब टोटो को अच्छा लगा, ठीक है कुछ और करने को मिला, नहीं तो मंकी बदमाश होता है. तो लिड हटाया और पानी जस्ट वार्म इनफ था नहाने भर का, तो उसमें कूद गए. अब नीचे आग जल रही थी, क्या करते. फिर हेड ऊपर था और केटल जो है ओपन था. ही वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू, कुछ देर के लिए ठीक था, फिर पानी खोलने लगा. फिर क्या हुआ, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ लिटिल, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. बाहर ठंड थी, फिर से बैठ गया उसी गर्म पानी में. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड, और उसमें से निकाल दिया इन्होंने. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, वो पार्ट जो है टोटो में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका था. अगर कोई पार्ट ऑफ ब्रेन है जो मिस्चीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो टोटो में वो पार्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था. हर एफर्ट करता था बदमाशी करने का, चीज़ें फाड़ देता था. और कई आंट थी इनकी, उनको तो कभी भी देखता था तो जैसे पास आती थी तो वो क्या करता था, उनका ड्रेस लेता था उसमें एक होल कर देता था. तो ये फिक्स था उसका. वन डे एज लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, एक पुलाव का डिश रखा हुआ था टेबल के सेंटर में. ये लोग रूम में पहुंचे और टोटो जो है वो जल्दी जल्दी खा रहा था वो पुलाव. एक आंट थी इनकी, वो दौड़ के गई इनकी तरफ एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, और उनको टोटो फेंक के मारा एक ग्लास पानी. सॉरी, टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, वन ऑफ माई ग्रैंड मदर पे प्लेट, और उसके बाद जो आंट थी उनको ग्लास ऑफ वाटर फेस पे. ग्रैंड फादर गए तो टोटो ग्रैंड फादर से बदमाशी नहीं किया, वो पूरा पुलाव का जो डिश था, बर्तन था, वो लेके ही भाग गया. एंड मेड एग्जिट थ्रू विंडो. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और जाकर ट्री पर बैठा हुआ था. कौन से ट्री पे? जैक फ्रूट का टेल का पेड़ था, उस पर जाके बैठा हुआ था और पूरे टाइम उस पर बैठा था आफ्टरनून. और धीरे धीरे एक एक तिनका वो चावल का खाते गया. और फिर क्या हुआ, एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, उनको और गुस्सा दिलाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन पर चिल्लाया था तो बदला तो लेना ही था. ही थ्रू डाउन फ्रॉम द ट्री वॉट ही थ्रू, डिश, जो बर्तन था वो फेंक दिया. ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight, और बहुत अच्छे से चाटर कर रहा था खुशी से. जब वो डिश जो है टूट गई 100 पीसेस में, वेसल रहा होगा तो वो टूट गया. चाइना वाला जो होता है जिससे कप्स बनते हैं. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ एनिमल वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ग्रैंड फादर को भी समझ में आ गया था कि ये इस तरह का पेट नहीं है जिसको ज़्यादा दिन तक घर में रखा जा सकता था. तो ये रियलाइज़ करने के बाद इन्होंने टोंगा ड्राइवर को उसको फिर से सेल कर दिया. कितने रुपए में? 3 रुपए में. 5 में ख़रीदा था और सस्ते में बेच दिया. महंगे में ख़रीद के सस्ते में बेचना क्या होता है? लॉस होता है, पर ये लॉस भी सहन किया जा सकता था. ये दिस इज़ समरी. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट द समरी इफ़ यू वांट, एंड these are the question answer. These are very easy. If you have any doubt you can definitely ask here below or in your doubt classes. That's all for today. Thank you. Have a nice day.